So we have the notepad here. Okay. So पहले we have seen there are different types of tags. Yes or no? Yes. So ये जो types of tags होते हैं, हम लोगों ने previous session में देखा था कैसे वो structure form होता है. There is a tree structure for the tags. HTML, उसके बाद head, उसके अंदर title और उसके बाद body. So a structure is very very important. हमें हर एक HTML document में ये structure follow करना बहुत ही important है. Alright? And how do you write the tags? You use angle brackets. कैसे use करेंगे? There are angle brackets that will be representing the words written inside them as tags. Tags क्या होता है? Commands. जो commands हम देते हैं, the commands will be put inside angle brackets. Okay? So how do you start with this? You start with HTML tag. HTML. यही है first tag. And always remember there will be an end tag /HTML. Is that clear? So anything that you're going to type is going to be between this HTML and the end HTML. Starting tag and ending tag के बीच में ही all the programs are going to stay. Okay? So HTML के बाद the first category of the code that we'll be writing is about the head and title. A head क्या होता है? Head is nothing but the heading of the web page. Heading का मतलब not the main heading that I'm talking about. जो browser के link पे display होता है ना, वो वाला heading. Okay? So how do you start with it? You're going to open this HEAD. Head tag. Head tag के container हम लोगों ने देखा था. What does the head tag contain? Head tag contains? Yes, the title tag. So head के अंदर हमें title type करना है. Or what can be the title? For example, I'm going to type it as computers. Okay? And every time remember आप जो title start करते हो, you are also supposed to enter the ending tag. Alright? So this title will appear on the browser. Browser में appear होगा ये title. Okay? So once the title is done, हमें क्या करना चाहिए? Head tag को close करना चाहिए. Is that clear? So one part of the HTML tag, that is the first part of the HTML tag is done. So HTML में हम लोगों ने structure में देखा था two different variations. एक होगा head, दूसरा होगा body. है ना? So first thing is head. Head के अंदर title रहेगा. We have finished writing the title and we have ended the title also. And we have closed the head tag. So एक part of the structure is done. अभी दूसरा try करने वाले हैं. How are we going to use this? This is going to be the body of the HTML tag. Okay? So इस body के अंदर ही हम क्या करेंगे? The main content of the web page जो बीच में दिख रहा है, the heading of the web page, और उसके बाद images, content, ये सब कुछ हम इसके बाद ही देखने वाले हैं. Body tag के अंदर ही देखेंगे. And we have already seen about a tag called as H1. याद है आपको? हम लोगों ने एक series of tags देखा था. है ना? So this H1 will represent what? याद है आपको? This H1 is going to represent the heading of the page. और ये H1 क्या depict करता है? The size of the content. कैसा होगा? H1 is going to be very huge. है ना? Biggest size of the heading is H1. As it goes low, H1, H2, H3 होगा तो automatically 2 points of font size keeps on decreasing. Okay? So heading क्या रख सकते हैं? Let's write about computers. So computers होगा heading. I'm going to close this heading. और उसके बाद हम एक पैराग्राफ लिखेंगे. So पैराग्राफ स्टार्ट करने से क्या करेंगे? We'll use the P tag, the paragraph tag, and write your content. Okay? Computers are the latest assistants in technology. Okay? And it helps us, it makes our jobs easier.
और इसके बाद हमें ये पैराग्राफ टैग को क्लोज करना पड़ेगा. ओके, ओनली देन इट विल रिप्रेजेंट दैट द पैराग्राफ इज कंप्लीटेड. हम लोगों ने अभी 2 सेंटेंसेस ही लिखा था, मगर व्हेन यू आर टाइपिंग मोर कंटेंट हमें बोलना चाहिए कि वेयर डज द पैराग्राफ एंड. ओके, सो पैराग्राफ इज ऑल्सो अ कंटेनर एलिमेंट. हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कंटेनर एलिमेंट के बारे में देखा था. कंटेनर एलिमेंट विल हैव अ स्टार्टिंग टैग एंड एन एंडिंग टैग. ओके, सो इसके बीच में जो कंटेंट लिखे हैं दैट इज गोइंग टू बी डिस्प्ले. ओके, सो इसके बाद हमें कौन सा टैग क्लोज करना पड़ेगा? सी द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में क्या क्या है? HTML स्टार्टिंग टैग एंडिंग टैग है, हेड का स्टार्टिंग एंडिंग है, टाइटल का स्टार्टिंग एंडिंग है, H1 का स्टार्टिंग एंडिंग है, P का भी स्टार्टिंग एंडिंग है. So that's one thing left out, that's the body tag which doesn't have an ending tag, so you are supposed to end the body tag, okay, and close it. So अभी how do you save this HTML document? कैसे सेव करेंगे? File, save as. How do you save it? सोचो कि this is the first program 1 dot HTML. हर एक HTML प्रोग्राम को हमें we are supposed to mention the dot HTML extension. नहीं तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली नोटपैड या वर्डपैड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा. ओके, एंड मेंशन द प्लेस वेयर यू वांटेड टू बी डिस्प्लेड. सोचो कि अभी लेट्स हैव इट ऑन द डेस्कटॉप. ओके, सो द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज PG1 और उसका एक्सटेंशन है HTML. कभी मत भूलना, यू आर सपोज टू यूज द डॉट HTML एक्सटेंशन फॉर इट टू रिप्रेजेंट द HTML प्रोग्राम. अभी डेस्कटॉप में सेव कर देते हैं. ओके, सो वंस इट इज सेव्ड इन द डेस्कटॉप, आप देख सकते हो यहां पे जो प्रोग्राम 1 है इट इज डिस्प्लेड इन व्हाट फॉर्मेट? एक वेब ब्राउजर के फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रहा है. द ई आइकन दैट यू सी इज द माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्राउजर है ना, उसका आइकॉन है. So this what will happen when you click on it? हमें पता है हम लोगों ने नोटपैड में ही टाइप किया था और नोटपैड का आइकॉन कैसा लगता है? इट लुक्स लाइक अ स्मॉल नोटपैड है ना. एक व्हाइट कलर रेक्टेंगल होगा और 2-3 लाइंस इन बिटवीन, दैट शोज इट इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. मगर जब हम लोगों ने डॉट HTML के एक्सटेंशन के साथ यूज किया, इट इज गोइंग टू बी शोइंग इन द फॉर्मेट ऑफ अ ब्राउजर. ब्राउजर का मतलब क्या है? Why do we use the browser? To connect to the internet. वो एक प्लेटफॉर्म है, ब्राउजर एक प्लेटफॉर्म है जो हमें इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेगा. ऑलराइट, और HTML क्या कर रहा है? This helps us in creating web pages. Yes or no? Yes, HTML helps us in creating web pages. So web pages तो इंटरनेट में ही मिलता है ना. Yes, so that is the reason we have the icon of a browser being displayed when you store the text document as a HTML document. समझ में आया? So you're going to open a notepad. notepad के अंदर आप प्रोग्राम को टाइप करोगे. टाइप करने के बाद कैसे सेव करोगे? You will save it as the program name .html. Okay? So इसके बाद क्या करना है? हमें डबल क्लिक करना है उस आइकन को. So wherever it is stored, it will get stored in the web browser. अभी डिफॉल्ट वेब ब्राउजर के साथ ओपन होगा. So, जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है इस सिस्टम में दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एज. सो माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ ओपन होने वाला है. सो आपका तो गूगल क्रोम रहेगा तो डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू बी इफ योर सिस्टम इज गॉट गूगल क्रोम एज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम के साथ ओपन होगा. ऑलराइट, सो सी दिस, यू हैव द वेब पेज बीइंग डिस्प्लेड. देखो ऊपर क्या दिख रहा है? कंप्यूटर्स दिख रहा है. दिस वाज द टाइटल दैट यू गेव. कहां पे दिए थे? सी द नोटपैड. यहाँ पे जो टाइटल के अंदर हम लोग टाइप किए थे दैट इज डिस्प्लेड हियर. इसलिए आई हैव गिवन 2 डिफरेंट केसेस. एक तो कंप्लीट अपर केस और दूसरा तो टाइटल केस में दिया था. सो दिस कंप्लीट अपर केस इज द टाइटल which is appearing on the URL. वेब ब्राउजर के ऊपर जो URL है वहां पे टाइटल दिख रहा है. और जो कंटेंट हम लोगों ने टाइप किया था H1 हेडिंग, देखो बोल्ड और बिगर इन साइज, दैट इज डिस्प्लेड हियर. सो जो कुछ यहाँ पे नीचे आ रहा है दैट इज बिलो द URL और द एड्रेस टैब, एवरीथिंग एल्स विल बी पुट इनसाइड द बॉडी टैग. ओके, सो टाइटल टैग, हेड टैग तो यहां से खत्म हो जाएगा. ऑलराइट,
और उसके बाद जो हम लोगों ने पैराग्राफ में दिया था, देखो दिस पैराग्राफ इज अपियरिंग हियर एज सच। समझ में आया आपको? यस। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ HTML प्रोग्राम। टाइप करोगे, सेव करोगे एंड रन भी करोगे। हाउ डू यू व्यू एन HTML? व्यू कैसे करोगे? इन अ वेब ब्राउजर। ऑलराइट, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी हैव सीन हाउ टू क्रिएट अ HTML प्रोग्राम एंड ऑल्सो व्यू HTML प्रोग्राम। So आगे के सेशंस में we'll see how to create sample programs using this basic principle. All right. So meet you in the next session. Until then, bye bye.